নৈহাটির সময় 1428 বর্ষ নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে তৃতীয় দিনের নাট্য উৎসব। প্রথম দিনের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার সহ কল্যাণীতে তাপস সেন ভবনে এবং এরপর নাটক দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং তৃতীয় পর্যায়ে 2 দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে। সার্থক রূপে রূপায়িত হলো এই নাট্যোৎসব বলে জানান বেশ কিছু নাট্যমোদী মানুষজন। খবরে মহন্ত দাশগুপ্ত। আমরা আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম, ওখান থেকে খবর পেয়ে এখানে এলাম। ও কুরুক্ষেত্রে এলে? আপনাটা যুদ্ধটা কেমন দেখলেন? আমরা আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেব বলে এসেছিলাম। ও সাক্ষাৎকার আমার সাবেন না দিদি ভাই, এই ফেলুবাবুর সাক্ষাৎকার দেখলেন না? ছেলে কেমন হিন্দি বাদ করছে, উধাও হয়ে গেল, জেবার হয়ে যাচ্ছে বাসায়, পারছি না, হাসাবেন না। তা ওই আমরা একটা সমীক্ষা করছি, তার জন্য যদিও নানা জায়গায় ঘুরতে হচ্ছে। এই শহরতলিতে আপনাদের পাড়ায় আজকে আমরা এসেছি, অনেকের বাড়িতেও গেছি, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সমীক্ষাটা কি ওই আজকে এন্টারটেইনিং মিডিয়ায়, ওই ইন্টারনেট, ভিডিও, মোবাইল এসবের প্রভাব বাচ্চাদের উপর, অভিভাবকদের এই যে মতামত, এই সব কিছুর একটা প্রশ্ন উত্তরে পাওয়া যায়। আচ্ছা, উত্তরগুলো আমরা রেপারে এসে শুনলাম আপনার ছেলেটিও নাকি। হ্যাঁ একদম ধসে গেছে। এই যে মিডিয়া ভাইরাস কিভাবে সবাইকে না আঁকড়ে পিষে দুনিয়ার রসাতলে যাচ্ছে। এদিকে আবার কি হয়েছে জানেন? ওরা সাকরে মুম্বাই পালিয়েছে। হ্যাঁ, আর আমারটা তালে আছে। এই মুম্বাই যাবে, ওর মারে বলে অ্যাকশন হিরো হবো, অ্যাকশন হিরো। পাচ্ছি না। আচ্ছা, সত্যি সত্যি কি পালাবে মুম্বাই? আরে না না, এদিকে আবার কি করছে, লুকিয়ে চুরি আবার বোতল নিয়ে বসছে। হ্যাঁ বোতল, যেই না বারণ করছি, হ্যাঁ অমনি লুকিয়ে চুরি করছে। কি করছে, বোতল ধরে? না না, মদের বোতল না, আসলে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল। সারা দিন রাত ছিপি খুলছে আর চো 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 করে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে। আর এই ছিপি পিটি নম্বর থাকে, ওই ছিপি থলে পড়ছে, ছিপিতে নম্বর থাকে, আকৃতি হয়ে যাবে। আর বিস্কুটের প্যাকেটটা একদম ঘরে ভরে গেছে। যে বিস্কুট নাকি লাখপতি বানাবে, আর এই বিস্কুট চিপে লন্ডন যাবে। বুঝতে পারছেন কি হার? এদিকে আবার পুজো আসছে, ছোট পর্দা ফর্দ মিলিয়ে লিস্টও বানিয়েছে। আদিদাসের টি শার্ট, নাইকের জুতো, ওই যে রেবন নাকি বলে তার সানগ্লাস। এদিকে আবার যে মুচি তার আবার জিন্সের প্যান্ট, আবার খুশবুওয়ালা পেন। যেই না বারণ করছি, চার পা ছড়িয়ে দিয়ে না খোঁপাচ্ছে। না, আপনার ছেলেকে ভাইরাসে ভালোভাবেই ধরেছে দেখছি। হ্যাঁ একদম পুরো। আবার মুম্বাই যাবার নেশা, একটা মাত্র সন্তান, বুকের পাঁজর, এই কখন যায় মুম্বাই যায়। এই যে ভূত, এই ভূত কি করে বেরোবে, কোন ওঝা যে তাড়াবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখেন এদিকে আমি না আবার এই গোল্ডের একটা ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট, আমার মিটিং আছে, আমাদের এখনই যেতে হবে। হ্যাঁ তা চলুন। আপনি ক্ষুদ্র মনে করলে ওটা আপনার বিনয়। আপনার সম্পর্কে আমরা খবর নিয়ে জানতে পেরেছি। দেখুন, বৃত্তের সম্মানে আপনার তুল্য কিন্তু এ তল্লাটে আর কেউ নেই। বৃত্ত, বাপের কাছে সন্তানের চেয়ে আর কোনো বৃত্ত বড় হয় বলেন তো? হ্যাঁ, এদিকে ছেলে আনকন্ট্রোল, আনম্যানেজেবল, আর আমি কি না ওই পল্লী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট। ভগবান কিভাবে আমার দোকান মিলে দিচ্ছে ভাবুন। আবার আপনারা আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, আমার কত প্রশ্ন জমে আছে ভগবানের কাছে। আচ্ছা চলি, অনেক বকলাম, হ্যাঁ আসি। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। ও মাফ করবেন, ধন্যবাদ। আপনাদের নামটা জানা হয়নি, পরে জেনে নেব। ধন্যবাদ। কিরে,
चाहिए कि तिरिच के पेशाब में लौटने के पहले ही इंसान को किसी तालाब या कुएं में जाकर डुबकी लगा देनी चाहिए। उससे तिरिच के जहर का नशा खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि तिरिच इंसान को नजर मिलते ही पहचान लेता है। नजर मिलते ही वो इंसान की गंध पहचान लेता है। इसलिए तिरिच को जब भी देखो उससे नजरें मत मिलाओ। एक बार अगर आपने तिरिच से नजरें मिला ली और उसने आपकी गंध पहचान ली, तब तो फिर वो आपके पीछे पीछे आएगा। फिर उसके बाद आप चाहे पूरी पृथ्वी का ही चक्कर क्यों न लगा दे, वो तिरिच आपके पीछे पीछे आता जाएगा। लालटेन की मटमैली रोशनी में शाम होने तक गांव के और भी लोग इकट्ठा हो गए। हमारे पास के गांव का एक चटुआ नाई था जो अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारना जानता था। रात भर वो भीड़ जमा रही। हमारे पिताजी के जख्म को चीर कर उसमें से खून निकाला गया और कुएं में डालने वाली दवा पोटेशियम परमानेंट लाल दवा उनके जख्म में भरा दिया। तिरिच दूसरे तमाम बच्चों की तरह मुझे भी तिरिच से बहुत डर लगता था। दरअसल मेरे इस खतरनाक दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे, एक तो हाथी और दूसरा तिरिच। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता, या उससे बचने के लिए मैं किसी ऊंची जगह पे चढ़ जाता, या फिर उड़ने की कोशिश करने लगता। लेकिन वो तिरिच, उसके सामने मैं किसी इंद्रजाल में फंस जाता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक दिखती, इससे ऐसा लगता कि वो मेरा एक ऐसा खतरनाक शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में उठने वाले हर विचार के बारे में पता है। मैं सपने में कहीं भी जा रहा होता, कहीं भी घूम रहा होता, वो तिरिच मुझे दिख ही जाता। तिरिच के मिलने की कोई जगह तय नहीं होती थी। कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी चट्टान की दरार में या किसी इमारत के पिछवाड़े में या किसी झाड़ी में दिखे। वो मुझे सड़क पे, बाजार में, सिनेमा हॉल में, ऑडिटोरियम में, यहां तक कि मेरे अपने कमरे में दिख जाता था। मैं सपने में लाख कोशिश करता तिरिच से मैं नजरें ना मिला पाऊं, लेकिन वो इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तिरिच से बचने के लिए मैं कभी सीधा सीधा या फिर गोल गोल या फिर कभी टेढ़ा मेढ़ा दौड़ता, 2-4 कदम पास रखकर लंबी छलांग लगा देता। लेकिन मैं उस तिरिच को धोखा नहीं दे पाता, वो तिरिच मुझसे चकमा नहीं खा पाता। मुझे लगता है वो बहुत हार, बहुत समझदार और बहुत ही चतुर है। माँ आती और मुझसे कहती कि तुम्हें नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है। वो मुझे रजाई में ढक देती, मेरे माथे को सहलाकर सुला देती, जबकि उन्हें जगा देना चाहिए था उस समय। मैं फिर से उसी खौफ
खौफनाक दुनिया में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता, अपनी मृत्यु नहीं, तिरिश द्वारा अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता हुआ, जूझता हुआ, चीखता हुआ। और ऐसा लगता कि जैसे वो पल आ गया है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। बिल्कुल इसी वक्त, बिल्कुल इसी एक छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं जोर से चीखता, मां! और अपने सपने से आज इंस्पेक्टर साहब को बहुत अफसोस होता है अपनी गलती पर। बहुत दुख जताते हुए वे कहते हैं कि अगर उन्हें ये पता होता कि वो आदमी बकेली गांव का एक मास्टर, इतना इज्जतदार आदमी राम स्वारथ प्रसाद है, तो कम से कम 2-3 घंटे तक तो वे थाने में बैठा कर उसे रख सकते थे। हालांकि सिपाही गजाधर प्रसाद को इस बात से इनकार है कि उसने उसके साथ कोई मारपीट की थी। उसका कहना था कि जिस वक्त पिताजी थाने में घुसे थे उस वक्त उनकी छुट्टी के निचले हिस्से में खरोंच के निशान थे, गेहूं टूटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वे कहीं गिरे हैं या उन्हें किसी गाड़ी ने टक्कर मारी। थाने से निकलने के 1.5 घंटे बाद तक पिताजी कहां कहां भटकते रहे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन मेरे दिमाग में यह बात आ रही है कि क्या तब तक पिताजी ने 1 गिलास पानी पिया था? इसकी संभावना बहुत कम बनती है, क्योंकि काढ़े के असर ने पिताजी की दिमागी हालत को इस कदर खराब कर दी थी कि पिताजी खुद अपनी प्यास को भूल गए थे। कोई इंसान अपनी प्यास को कैसे भूल सकता है? लेकिन मैं क्या सोचता हूं, नशे के बावजूद उनके मस्तिष्क में थाने पहुंचने के बाद एक न एक बार तो यह ख्याल आया होगा कि थाने पहुंचकर वे अपने गांव बकेली जाने का रास्ता पूछ ले, या फिर उस ट्रैक्टर का पता पूछ ले जिससे वो उतरे थे, या फिर अदालत जाने का रास्ता पूछ ले, या अपने कागजात गुम रिपोर्ट हो जाने की रिपोर्ट ही लिखवा दे। ये सोचने के करीब पहुंचना ही बहुत बेचैनी से भर देता है कि उस वक्त पिताजी तिरिश के जहर और धतूरे के काढ़े के नशे के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे थे। उस वक्त भी उनके नशे की नींद में हमारे मकान की चिंता बार बार नींद में से कहीं न कहीं सर उठा रही थी। हमारे मकान की चिंता उनकी नींद में से सर उठा रही थी। उसमें बड़ी उम्र के लड़के भी पड़ गए थे और वे पिताजी पे लगातार ठेले बरसा रहे थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ सत्य का कहना है कि पिताजी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल पिताजी ने भी ठेले चलाना शुरू कर दिया था। हाँ, और सत्य का यह भी कहना है कि पिताजी बीच बीच में अंड बंड गालियां भी दे रहे थे। आओ सालो, आओ तेरी मां की, आओ सालो, एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी ने गालियां बकी हुई नहीं, मैंने आज तक अपने पिताजी को कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना। रेस्टोरेंट के मालिक सरदार सतनाम सिंह का कहना था, ओए पाजी, मैंने की पता क्या थी कि आदमी इतना सीधा साधा इज्जतदार और रसूखदार इंसान है। नसीब के फेर में क्या हालत कर दी है इसकी। सतनाम सिंह का कहना था
कि उस वक्त पिताजी के शरीर के कई हिस्सों पे चोट के कई निशान थे। मैं ये जानता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं अपने पिताजी को जानता हूं। मेरे पिताजी को अब तक ये लगने लगा होगा कि उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक झूठ है, एक सपना है। वे इस पर अविश्वास करने लगे हैं। उनको ये सारी घटनाएं बेमतलब ऊल चुलूल और उटपटांग लगी हुई। उन्होंने सोचा होगा कि ये क्या बकवास है, वे तो गांव से शहर आए ही नहीं, उन्हें तो किसी तिरिच ने काटा ही नहीं, और बल्कि तिरिच होता ही नहीं है। ये सब मन गढ़ंत अंधविश्वास। बीच बीच में उन्होंने कई बार ये भी सोचा होगा कि भला उन पर मुकदमा क्यों चलेगा, भला उन्हें अदालत जाने की जरूरत क्या है। ओह, एक सुरंग जैसा लंबा, सम्मोहक और डरावना सपना पिताजी को भी आता होगा। मोची ने पिताजी को उस हाल में देखा और उन्हें पहचान न सका। गणेशवा ने बताया कि पिताजी का चेहरा उस पर इतना डरावना लग रहा था कि वो डर के मारे चीख पड़ा। गणेशवा की चीख सुनकर आसपास के सारे मोची इकट्ठा हो गए, साथ ही दूसरे लोग भी वहां आ गए। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी में झांक कर देखा तो पिताजी फटे पुराने जूतों, रबर के चिथड़ों और चमड़े के टुकड़ों के बीच में दुबके हुए पड़े थे। लोगों ने उन्हें गुमटी के बाहर खींच कर निकाला और पटरी पे लिटा दिया। पटरी पे लिटते ही गणेशवा ने पिताजी के चेहरे को गौर से देखा और गणेशवा ने पिताजी को पहचान लिया और चीख पड़ा, मास्टर साहब, मास्टर साहब, बकेली गांव के मास्टर साहब, बकेली गांव के मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब। गणेशवा ने पिताजी के कान में जोर से कहा, मास्टर साहब, मास्टर साहब। गणेशवा ने कहा कि पिताजी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे कुछ भी स्पष्ट बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ, उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी उस समय तक। गणेशवा ने पिताजी के कान में जब कुछ कहा होगा तब तक तो पिताजी को थोड़ा बहुत होश रहा होगा। गणेशवा की आवाज सुनकर पिताजी शायद अपने उस सपने से जाग गए होंगे। पिताजी ने मुझे देखा होगा, मां को देखा होगा, मेरी बहन को देखा होगा और एक दातून लिया होगा और नदी की ओर चल पड़े होंगे। नदी के साफ पानी में उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा। उस वक्त भी शहर जाने की बात उनके दिमाग में आई होगी, अदालत जाने की बात दिमाग में आई होगी, हमारे मकान की चिंता ने उन्हें उस वक्त भी परेशान किया होगा। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पिताजी का मौत का समय था ठीक शाम के 6:30 बजे। तारीख थी 17 मई 1972। 17 मई 1972 शाम के ठीक 6:30 बजे, हाँ, 24 घंटे पहले ठीक इसी वक्त तिरिच ने उन्हें काटा था। 24 घंटे पहले ठीक इसी वक्त। थानू कहता है कि अब तो ये तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई बच नहीं सकता है।
ठीक 24 घंटे पहले तिरिच ने पिताजी को काटा था और 24 घंटे बाद तिरिच के जहर ने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। নৈহাটি সময় 1400 কর্ণধার মান্তুদি একটি ছোট্ট উপহার তুলে দিচ্ছেন ডিরেক্টর সারমজির কাছে। Saranji, please convey your feelings and attitude, everything regarding our festival, regarding drama series. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये तिरिश जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। ये उदय प्रकाश, आप लोग अगर जानते होंगे तो वो हिंदी साहित्य के एक बहुत प्रख्यात और बहुत ही 90s और 80s के बहुत बड़े वो कहानीकार, कवि। उनकी कहानियाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, लिनियर नहीं होती है, वो नॉन लिनियर कुछ कह सकते हैं। तो एक देख के उनकी बातें नहीं होती है, बहुत ही घुमा फिरा कर वो बातें कहते हैं। तो सोलो परफॉर्मेंस करना बहुत ही चुनौती भरा होता है हमेशा से। तो विवेक जी ने बहुत ही सहजता से इसे निभाने की कोशिश की है। तो आप लोगों का प्यार अगर अच्छा लगा हो तो उनके लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल भरा होता है कोई भी काम को करना। और उदय प्रकाश जी की बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कहानियों को ज़्यादा मंचन होना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्शियस और हमारी चेतना का विकास होता है। जो कि हमारे चेतना का रंगमंच, मैं कहता हूँ कि हमेशा से कॉन्शियस लेवल हमेशा हमें हमारा हाई होना चाहिए। ये नहीं कि हम सबकॉन्शियस को अधूरा छोड़कर कॉन्शियस पे नहीं। कॉन्शियस जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ हमारी जो इंद्रियां हैं, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वो फेस्टिवल टीम का जिन्होंने हमें इनवाइट किया। हम चाहेंगे कि हमेशा बार बार आपके यहाँ आते रहें, हमारा प्यार आपको और आपका प्यार हमें मिलता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइट पर थे विनय चौहान, म्यूजिक अभिषेक आर्य और सुनील जी सेट डिजाइन और विवेक का सोलो परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Saranji and team. আমরা आप लोग बिहार से आए थे। जी बिहार से आपका डिवाइन जो नाट्य संस्था जी डिवाइन सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बंगाल में आके जो आज नैहट्टी में, कलकत्ता के नैहट्टी में जो नैहट्टी समय 1400 जो संस्था, उनका नाट्योत्सव में जो आप ड्रामा किए हैं, आज बंगाल को नाट्य व्यक्तित्व जो समर्थक जो है नाट्य मोदी, उन लोग को क्या वार्ता दीजिएगा बंगाल? बंगाल तो हम लोग बराबर आते रहते हैं, लेकिन हमारी संस्था पहले नैहाटी में आ चुकी है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नैहाटी पहली बार आ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ के लोगों का जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका बहुत प्यार मिला। उन लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, एकोमोडेशन की अच्छी व्यवस्था की। हालांकि चूँकि यहाँ हिंदी की ऑडियंस कम थी, तो ऑडियंस की संख्या कुछ कम थी, लेकिन जितनी भी ऑडियंस थी उन लोगों ने बहुत ही डिसिप्लिन्ड बने, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर हमारा प्ले देखा। और ये देखकर हमारा हौसला बढ़ा। वी आर वेरी इनकरेज्ड एंड और हम लोग बार बार चाहेंगे कि हम लोग बार बार आप हमें बुलाएं और बार बार हम ऐसे नाटक करें। आपका नाम? विवेक कुमार, आई एम एन एक्टर। भावना के बारे में बिहार से आके यहाँ पर जो ওনার নাম হচ্ছে সরম উপাধ্যায়। अच्छा, हाँ। और आप जो पूछ रहे हैं कि भावनाएं, हमारी जो भावनाएं बंगाल के बारे में कुछ कह रही है, उनकी परंपरा तो बहुत पुरानी रही है, अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सूर्य को दिया दिखाने जैसा है बंगाल की परंपरा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि विवेक जी ने बहुत सही बात कही कि हम लोग बंगाल में हमेशा आते रहे। यहाँ की ऑडियंस का जो हमें प्यार मिलता है, मुझे लगता है कि इंडिया में गिने चुने ऐसे राज्य हैं या कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें बंगाल और कोलकाता और नैहाटी, कोलकाता, अशोकनगर, बहरामपुर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक प्रमुख है मेरी नज़र में। तो यहाँ आकर हमेशा से उत्साह, अच्छा, खुशी मिलती है और हमेशा से एक नया अनुभव मिलता रहा है। और हमेशा हम चाहेंगे कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो यहाँ दूसरी बार हम आ रहे हैं। मैं तो लास्ट ईयर नहीं आ पाया था, पॉपकॉर्न था, ये भी नहीं आ पाया था, तो इस बार मुझे आने का
मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्वर उपाध्याय पिछले बचपन से ही थिएटर कर रहा हूँ, क्योंकि 20 साल 25 साल हो गए। मेरे पिताजी भी इस क्षेत्र में, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर इस फील्ड में बड़ा किया है। संजय उपाध्याय जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंग निर्देशक हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरी सब कुछ है। आप कह रहे हैं ज़िंदगी जो भी मेरी थोड़ी बहुत पहचान या जो मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ की बदौलत। और जो हम लोग आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग उन्हीं के पौध हैं। जितने भी हमारे बिहार रंगमंच में आप जितने भी आप कहीं भी चले जाएँ, जितने भी लोग से सब उन्हीं के पौध हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा लगता है, हर बार हम लोग बंगाल आते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है। आप लोग जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो हिंदी नहीं समझते, लेकिन फिर भी जितने लोग समझते हैं वो असली दर्शक हैं। वैसे ही दर्शक हमें चाहिए, वो दर्शक नहीं चाहिए जो हुल्लड़बाजी करते हैं और बीच में ही चले जाएं और बोल दें कि हमें कुछ तो पढ़ो नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे हमें दर्शक नहीं चाहिए। हमें दर्शक चाहिए कि 5 ही लोग रहें, क्योंकि हम लोग जो है सच में वो ऐसे कंटेंट देना चाहिए समाज में कि अब ठीक है, फोक के एलिमेंट होने चाहिए, रियलिज्म के होने चाहिए। अब मुझे चाहिए मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म में ये वो है कि जादुई यथार्थ, सपने की भी बात होती है, यथार्थ की बात होती है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये एक यथार्थ है, ये रियलिज्म है। फिर हम सपने में जाएंगे, कुछ चीज़ें सोचेंगे, फिर वो चीज़ें हो जाएंगी, वो मैजिकल रियलिज्म। फिर कुछ चीज़ें हम सोच रहे हैं, वो भी मैजिकल रियलिज्म में होने के करीब हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि कंटेंट में भी अब बदलाव होने चाहिए। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी खातिरदारी, और आप लोगों का भी प्यार हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। আপনার নাম বিবেক स्वर उपाध्याय। সোহান। আচ্ছা, আমরা ম্যাডাম কি জানো, আপনার এই বিহার থেকে যারা এসে এই অভিনয় করলো কেমন লাগলো আপনার? খুব ভালো এদের অভিনয়। শারদ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মানে ডিরেকশন আমাদের ভীষণ প্রিয়, যার জন্য গত বছরও আমরা এনেছিলাম, এবছরও সেই জন্য এনেছি। চাই সবাই দেখুক এদের নাটকটা। যাই হোক, যারা বুঝবার মতন দর্শক ছিল তারা প্রত্যেকেই বুঝেছে নাটকটা, সবাই রিলিশ করেছে, এটাই আমাদের সব থেকে পাওয়া। ধন্যবাদ। আপনার তো বসে নাটকটা দেখলেন, হ্যাঁ দেবাশিস দাও আপনার সঙ্গে ছিল, আপনিও খুব ভালো ইউনিটি মালঞ্চের আপনারা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বিশাল নাট্যকার এবং নাট্য ব্যক্তিত্ব। কি বলবেন আজ নাটক কেমন লাগে? কর্মী হিসেবে চেষ্টা করি। আমার নাটকটা দেখে খুব ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে, কখনো কখনো ওনার সঙ্গেই আমরা গল্পের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছি, কখনো কখনো আলাদাভাবে অ্যালিয়েনেশনের মধ্যে দিয়ে উনি আমাদের যেন একটা ব্যক্তির পদ্ধতি যে অ্যালিয়েনেশন, যে দূরত্ব সৃষ্টি করা, সেটা কখনো কখনো ইনজেক্ট করেছে। আবার কখনো কখনো ক্যারেক্টারের সঙ্গে আমরা মিশে যেতে পেরেছি, গল্পের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে যেতে পেরেছি। এই দুটো মিশ্রণ হয়েছে। ভদ্রলোক এমনি যে অ্যাক্টিং করেছেন সেটা খুব ন্যাচারাল, খুব ভালো অভিনয় করছেন। এককভাবে একটা মানুষ বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তার অবয়বটা চেঞ্জ করে, সামান্য একটু চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে, তার চেষ্টার চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে বাচ্চা, কখনো পিতা, কখনো সে ন্যারেট করছে। এই জায়গাগুলো খুব ভালো লেগেছে। আমার পার্সোনাল অ্যাক্টিং খুবই ন্যাচারাল টাচ করেছে। আর ওই জায়গাগুলো ডিরেক্টর হিসেবে খুব ভালো লেগেছে যে কখনো কখনো আমরা মানে গল্পের মধ্যে খুব ঢুকে যাচ্ছি, কখনো কখনো ওই অ্যালিয়েনেশন ব্যাপারটা আমাদেরকে ইনজেক্ট করছে। এই দুটো মিশ্রণটা খুব ভালো লেগেছে। মানে আলটিমেট আমার খুব ভালো লেগেছে না।